welcome you all in today's event, that is group discussion. So before beginning, I would like to tell you all that Amar Ujala is our media partner for this event. So welcome you all to Jazbat 2020 Carnival. A big round of applause for all the participants and our jury. Okay, so before we begin, I would quickly like to read out all the rules and regulations for you all. The event will comprise of two rounds. Each participant will get 2 minutes to speak in round one, followed by an open round for rebuttal in round two that would last for 15 to 20 minutes. Use of unparliamentary word is strictly prohibited. No language foundation. The event will take place through meeting as it is going on, and the recorded session will be posted on Instagram and as well as on YouTube. So, what is the judgment criteria? The winners will be finalized on the basis of speech, relevance of content, usage of language, and the quality of arguments made. The decision of the jury would be final. So, thank you everyone. We have seven participants right now with us, and for round number one, our topic is: should honest people join bureaucracy or politics? So, for further details, I would like to hand over to Devansh, and this event will be hosted by Mr. Pranshu. Thank you everyone, and all the very best. All right, thank you so much, Ushali. And before we start, I would like all of you to please introduce to you the jury for our today's event, and he is one and only Mr. Durgesh Kumar Tripathi जी. मेरे हिसाब से जितने भी लोग लखनऊ में हैं और जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं वो सभी कहीं ना कहीं से सर को जानते होंगे बिकॉज ही इज करेंटली वर्किंग as the president of the Ekal Future organization, that is basically a kind of NGO working for the welfare of the children all around the nation. की branches झारखंड, जयपुर, अयोध्या और लगभग उत्तर प्रदेश के मेजर शहरों में है where they are teaching children free of cost. He has also been former president of the Lucknow University Meritorious Student Council, former NCC best cadet all over India, and also been the part of the Republic Day contingent. So I believe कि सर के बारे में जितना भी मैं बताऊं, अगर उसको बताना हो तो उसके लिए पूरा सेशन हम और कर सकते हैं. And thank you so much, sir, कि because of keeping in mind your busy schedule, आपने हमारे लिए ये समय निकाला है, and आपने हमारे बीच आकर के हमें मौका दिया कि आप इन बच्चों को जज कर पाए. तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर वर्दी टाइम, एंड आई विश कि आपको जो हमने टाइम लिया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम फ्रूटफुल बना पाए सभी के लिए. तो आई वुड रिक्वेस्ट प्रियांशु जी कि प्रियांशु आप प्लीज अब आगे के जो रूल्स हैं और जिस तरीके से कंटेस्टेंट्स को आगे आना है उनका सीक्वेंस एक बार सभी को पढ़ के बता दें, और आसान शब्दों में रूल्स क्या हैं इनको थोड़ा सा समझा दें सभी स्टूडेंट्स को. Thank you, Devans. Good evening to all of you. This is Priyanshu, your host for this event. और ये जज्बात द्वारा आयोजित ग्रुप डिस्कशन है और ये ग्रुप डिस्कशन का राउंड फर्स्ट है जिसका टॉपिक है शुड ऑनेस्ट पीपल जॉइन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स. क्या ईमानदार और अच्छे लोगों को राजनीति और प्रशासनिक सेवाओं में आना चाहिए. ये इवेंट दो पार्ट में विभाजित है जिसमें आपको हर पार्टिसिपेंट को 2 मिनट मिलेंगे बोलने के लिए. उसके बाद 15 या 20 मिनट मिलेंगे जिसमें आप किसी अदर पार्टिसिपेंट के आर्गुमेंट्स को काउंटर आर्गुमेंट कर सकते हैं या फिर सवाल पूछ सकते होंगे. तो जो पार्टिसिपेंट्स के नाम है वो मैं एक बार बोल देता हूँ. पहले है अदिति, उसके बाद बाबू शौर्य, ध्रुव कृष्णा, पलक, सत्यम, वन्या और अखिल पांडे. तो शैल वी स्टार्ट दुर्गेश सर. बिल्कुल सर, बिल्कुल स्टार्ट कीजिए. थैंक यू सर. तो फर्स्ट पार्टिसिपेंट है अदिति. Hi, yeah, am I audible? Yeah, of course. Okay, so first of all, I would like to start by saying that I am vehemently in favor of the motion. So, to be honest, I would like to say that the honest and honorable are not the epithets that one associates with politicians in India. In fact, the words synonymous with politicians or government officials are more to the line of morally corrupt individuals who place their vested interests over national interest when it comes to policy making or implementing them. And there is no doubt a dearth of conscientious and veracious individuals when it comes to politics, because these people would not even enter the field in the first place. So what is the underlying cause that has led to mudslinging and blackmailing in the field of politics in the first place? That would lie a fundamental change. That would actually be a fundamental rule of politics in India, which is
the money laundering and black money, which is used to fund campaign trails, to manipulate voters, to threaten their rival candidates, to discourage actual well-meaning, well-intentioned people to join this field in the first place. And how can we, as voters, as honorable citizens, then expect these representatives to to uphold the provisions of our constitution when they have presided over the parliament by exploiting them in the first place? So the need for the hour is for these politicians to be held accountable, and media plays a very vital role in that. I believe they have the power to make or break a person's reputation and change their career in the public's eyes. So there is also a need for transparency, free and fair elections, and a strong opposition, which is lacking in India for the time being. Aditi, your And time's up. that's it. Thank you. Thank you, Aditi. Next participant है Babu Saurya. Are you there? Babu Saurya. A very warm good evening, everyone. This is Babu Saurya. Yesterday in the evening, when I was framing my points, my younger sister, she is 7-year-old, she was beside me, and after having a curious eye on my activity, she popped up and said, "Can politicians be honest too?" This question from a 7-year-old girl struck in my mind and made me stubborn for a fraction of a minute. At that moment, I realized I should go for the topic that, yeah, honest people should join politics and bureaucracy to change this thinking of the 7-year-old girl, to change the thinking of the whole civilization. If I personally talk about a politician, I would love to quote these lines. A politician should always say what's true, speak when he is spoken to, and behave mannerly on a table, at least as far as he is able. The first line itself shows us very clearly that a politician should be honest and trustworthy. If we see the current situation, we may come up to a decision that the politicians or the politics have degraded their own value. The reason for the degradations can be many. It can be corruption, it can be misconduct, it can be misbehave, but the main reason is lack of the honesty in the politics. Honesty and politics are the two sides of the same coin. The success of the economic development, directly or indirectly, depends on the honesty in politics. The next important aspect that I want to discuss for the reason why a good heart or honest people should come in politics is that if we will have a good leader, it will build trust in the environment. If we have a good leader, he may end up leading somewhere in honesty. Last but not the least, I would like to conclude my complete topic by saying these words that though your work may be hard, look or not on it as an ill. If it is an honest task, do it with an honest will. Thank you. Thank you, Saurya. The third participant is Dhruv Krishna. So before we begin, I would like to welcome Mr. Vibhu Banerjee sir in the event. So welcome, sir. Good evening. Good evening, sir. Vibhu, sir, if you are there. Yes, Devansh, I'm here. Good evening, guys. Let's proceed with the event. I'm very excited to hear these talented students. And my utmost regards to Durgesh and the organizers. Thank you so much, sir. So, Dhruv Krishna, you may please proceed. Sir, before I would like to ask, sir, can I switch on my own timer? Yeah, sure. Okay. So, firstly, when I came across this topic, which I read yesterday, should honest people join politics? क्या ईमानदार लोग और अच्छे लोगों की राजनीति में जरूरत है? So, obviously, yes, we need them, and only honest people we need them. Only and only honest people, I think, should be there in politics and bureaucracy. Why we should need them? First of all, honest people who are, especially when I'm talking about honest people who are true to themselves. Why are they needed? In the current scenario of our country, what we are mostly lacking is transparency. If we look at anything, for example, if we look at the current rape case which happened, the Hathras rape case, or any other which civil suits or any criminal
action whichever we see, has been always some kind of action which has blinded people. How it has blinded them is because there has always been, facts have always been hidden from them. Transparency has not been there. Hatred, because of which the people's own judgment, their own conjectures based on the half knowledge arises. Hatred spreads among them, and that is what I believe is it is very bad for a country like India, because we are living in a democracy. Democracy, लोकतंत्र के लिए तो बहुत जरूरी है कि हम transparent रहें. Firstly, the leaders, why should they be honest? For transparency, as I had said earlier, what is the most important thing is that they are open to criticism. In democracy, we need criticism. Why we need criticism? Because criticism इसलिए जरूरी है. The laws which are made, अगर एक political leader अगर अच्छा होगा तो बाकी के departments भी अच्छे होते हैं. Because as we know, हमारे police action हो गया या कोई other judiciary हो गया, any other department हो गया, उसके ऊपर politics बहुत एक important bearing करता है. Important bearing इसलिए भी करता है, हमारे caste based politics है, religion based politics है, जो कि लोगों को divide करता है. We need an honest person जो firstly, an honest person will never divide people. He will always welcome criticism, and he will be open. And for being open, even if we need young and dynamic people, then also it is true, we can need them. I'm not saying that old age people are rigid, and they are mostly rigid, because there is also a reason why they are so, because they have been through their own experiences, and they have shaped their mentality, and thoughts are shaped by their own experiences, and it is not their own fault. Young and dynamic people are needed because they are still going through that growth. And a good leader, not a good leader, a best leader, I would say so, is the one who accepts his mistakes, so अपनी गलती मानता हो, and that not only positively affects his individual and personal development, it also positively affects the development of the country as a whole. Because हमारे अगर पॉलिटिशियंस अगर अच्छे लीडर्स वहां पे हैं, तो जब पुलिस एक अगर एग्जांपल ले लें, तो पुलिस बहुत इंडिपेंडेंट फील करेगी. दे विल बी फ्री टू टेक एक्शंस. उनको ये नहीं डर रहेगा कि मुझे पॉलिटिशियन से डर है कि वो अगर मेरी फैमिली को थ्रेटन करता है या मेरी बीवी बच्चों को किसी तरीके से डर है. सो दैट इज व्हाई. ओके, सो माय कंक्लूडिंग स्टेटमेंट वुड बी फॉर द क्वेश्चन विल बी yes, honest people, we need honest people in politics and bureaucracy. Thank you. Thank you, Dhruv. The next participant is Palak. Palak, are you there? Am I audible? Palak, Hello. Hello. Yeah. Good evening, everyone. My name is Palak Srivastav. I'm from University of Lucknow. As you all know that today's topic is, should honest people join politics or bureaucracy? क्या ईमानदार और अच्छे लोगों को राजनीति एवं प्रशासनिक सेवा में आना चाहिए? According to me, they shouldn't. You must be thinking why I'm saying this, but they shouldn't. उन्हें नहीं आना चाहिए. Starting from the beginning, in the post-independence time, that is 1948, the first major corruption scam held by Nehru government, that is the Jeep scandal case. The person we see as an ideal, हम उन्हें देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं. 14 नवंबर उनका बर्थडे चिल्ड्रंस डे की तरह मनाया जाता है. लेकिन हमारे इंडिपेंडेंस के जस्ट एक साल बाद 1948 में ही जो सबसे बड़ा मेजर करप्शन स्कैम हुआ, वो नेहरू की गवर्नमेंट ने ही किया. उसके बाद अगर देखा जाए, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें ऑनेस्ट पॉलिटिशियन से ज्यादा ऑनेस्ट पीपल चाहिए. एज अ पब्लिक, एज अ सिटीजन, नॉर्मल लोग चाहिए. अभी की बात करें कोविड के टाइम में, तो हमने काफी सारे कोविड हीरोज देखे हैं जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है. दे आर नॉट ब्यूरोक्रेट्स, दे आर नॉन पॉलिटिशियन पर्सन, दे आर नॉन ब्यूरोक्रेट्स, बट फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि एक डिफरेंस ला सकता है, एक चेंज ला सकता है. देयर इज वन वीटोलॉजिस्ट, अ डॉक्टर मिस डॉक्टर भोसले, जिन्होंने विद इन अ वीक, शी वाज इन हर लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बट उन्होंने फिर भी विद इन अ वीक कोविड-19 टेस्ट किट बना दिया अपने टीममेट्स के साथ. अफरोज शाह एक 33 ओल्ड पर्सन है जिसने पूरा वर्सोवा बीच क्लीन किया. They have nothing, they have no authority, no power, they were non-political person, they have no strong background, but still they did it. So we need honest people more than honest politicians, because honest politician or honest politics can be only uprooted in a society when we have honest citizens. जो लोग आज वहाँ पे खड़े हैं, वो खड़े तो हमारे बीच से ही आगे निकल के हैं. अरविंद केजरीवाल जिसने
लास्ट बट नॉट लीस्ट, अच्छी कौमें सरकार हैं, वो अपनी आवाज उठाती हैं, विरोध के करती हैं। थैंक यू। Thank you, Palak. The next participant is Satyam. Okay. Good evening, Durgesh sir. Good evening, ladies and gentlemen. I, Satyam Rai, firmly stand in the favor that honest people not should but must join politics or bureaucracy. See, an honest person for me is like a lotus in the muddy water. The muddy water here represents the whole system of governance in the India currently, full of scam, full of corruption, etc. But an honest person, throughout his life, he will serve diligently and faithfully for the country. But what I want to say is that he will not ever step out of his comfort zone. He will not challenge the overall authority. He may do his work faithfully. We have certain bureaucrats in our system, like former bureaucrats, like Mr. Subramaniam Jaishankar, our current foreign minister. He was a foreign secretary thereafter. Secondly, we have our power and renewable energy minister, former IS officer Mr. R.K. Singh of the Bihar cadre. We have civil aviation minister Mr. Hardeep Singh Puri. He was also an IS officer. These people were honest, but their honesty was accompanied by conviction. Their honesty was accompanied by a larger purpose in life for serving the country to a larger medium. Secondly, accompanied by their desired amount of potential and the power, which, see, there's a line being told to the bureaucrats when they are in Lavasana, that is Lal Bahadur Shastri Academy for National Administration, that the politicians might be the masters, but the bureaucrats are the actual rulers. But is this true to the real ground? Do they get the desired amount of autonomy for fulfilling their operations? These bureaucrats whose name I've just given as an example, they were also bureaucrats. They could have got retired and could have lived a normal life, but they chose a path, they chose a larger purpose for serving the country, because bureaucracy and politics, these two are the mediums through which you can serve the country to the most. So I firmly stand in the favor that yes, an honest person should join politics and bureaucracy. Thank you. That's it. Thank you, Satyam. All right. The next participant is Vanya. A very good evening to one and all. I, Vanya Vikas Singh, hereby put forth my views on the topic given for speech. Political honesty is a two-pronged theory. Political system is a game of leverage, power, and control. So deception and dishonesty is required. In fact, politics provide a forum for ones with no trustful character. In order to ascend ladder of success, leaders lie to a point that they trust their own lies to convince and persuade others. So as far as concerned, one of the questions that in order to eradicate, why don't honest people join bureaucracy and politics? Deliberately positive and successful question answered by an IITian. He said that honest and hardworking people are busy getting into IITs and IIMs. That's not a bad career option. Rather, it gives us all stability and safety. Throughout our lives, we prong for honesty and hard work. So we want appraisal in our jobs with honesty and hard work. We don't want to jump in the corruption of ocean. So later asked politics as a career, what are your suggestions? So he answered it very tactfully. He said that politics is very competitive and uncertain career, because in politics, two ambitious leaders could overthrow dynasty as a whole. We all know that Congress is no longer winning. So what if we want to join politics? So he said that we really want to join politics, but we do not want to fall in the line of corruption, because the line of corruption starts when we want to facilitate our work. And these are the things which keep intelligent and hardworking people away from politics as a career. And honesty in politics is definitely a rarity, because most of the politicians appear to be honest, but they're not honest, because they did not get any opportunity to show their dishonesty. That is why they show the whiteboard and hide the blackboard. So lastly, concluding my thoughts on this topic, time's up. Just 2 minutes. I believe that we should not join politics, because none of the children's parents would want their children to serve. Thank you. All right. Thank you, Vanya. The next participant is Akhil Pandey. Hello everybody, this is Akhil Pandey. I'm a BA Political Science student from Banaras Hind University.
सबसे पहले तो सबने नायक मूवी देखी होगी, उसमें एक ट्रेडमार्क लाइन है, एवरीबडी, सबके सब चोर हैं, बीप। और हम अपना आम जिंदगी में कहते रहते हैं कि पॉलिटिक्स एक गंदी नाली का कीड़ा है, पॉलिटिक्स में जाना है, क्या करेंगे पॉलिटिक्स में जाके, करप्शन ऑफ ओशियन, दैट आवर फॉर्मर पार्टिसिपेंट सेड। 1947 से लेकर 2020 तक अगर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ने कोई चीज लैक की है तो वो है ऑनेस्टी। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है उसको हम लोग कहते हैं स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि पॉलिटिक्स लॉज बनाती है, ब्यूरोक्रेसी लॉज इंप्लीमेंट करती है। अगर दोनों में ऑनेस्टी लैक करेगी तो आई डोंट थिंक दैट इंडिया विल ग्रो, और इंडिया ने ग्रो किया है। 47 से 2020 तक इतने स्कैम्स हुए, इतने घोटाले हुए, अच्छे काम भी हुए। अच्छे काम किस वजह से हुए? जो थोड़े बहुत ईमानदार लोग थे। लेट मी गिव एन एग्जांपल, दुर्गा शक्ति नागपाल, मनमोहन सिंह, जिन्हें हम कहते हैं ही वॉज ए पपेट। 2007 में इंडिया की जो जीडीपी 9% हाईएस्ट पहुंची थी, उन्हीं की एरा में पहुंची थी। अशोक हिमका 27 साल के सर्विस में 53 बार ट्रांसफर हुआ है, ऑनेस्टी के नाते। पॉलिटिक्स में बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रमोद महाजन, दे आर ग्रेट ओरेटर्स, दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस। सेकेंड, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स में क्या अच्छे लोग आने चाहिए? इसका जवाब तो मेरे ख्याल से हर कोई कहेगा हाँ, लेकिन कैसे आएंगे? इसकी शुरुआत जो होगी वो हमसे होगी। हम जो अपने बच्चों को सिखाते हैं, पहले हमें पॉलिटिक्स को देखने का नजरिया बदलना होगा। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, जो हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिक्स की डेफिनेशन, तो उसमें आता है पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स इज द इंटरकनेक्शन बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो हमें पहले बच्चों को अपने सिखाना होगा कि पॉलिटिक्स जो होती है वो हमारे लिए ही होती है। पॉलिटिक्स को ये कहना कि ये गंदी नाली का कीड़ा एंड पॉलिटिक्स इज वेरी बैड और यहाँ पे आप जाओगे तो सिर्फ क्या नाम है, आपको गालियां सुनने को मिलेंगी, सो दैट इज नॉट गुड। सेकेंड, ब्यूरोक्रेसी की बात। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, सो दैट वाज अ वेरी वंडरफुल राउंड, जहाँ पे सभी लोगों ने अपने पॉइंट्स बहुत ही बखूबी तरीके से रखे हुए हैं। बिफोर वी मूव टू द राउंड 2, दैट इज बेसिकली द रिबेटल राउंड, जहाँ पे आप सभी को एक एक क्वेश्चन पूछने का अधिकार होगा आप सभी से। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे जूरी मेंबर मिस्टर दुर्गेश कुमार त्रिपाठी जी को कि वे अपनी तरफ से एक ओपन क्वेश्चन सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए रखें, और सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से पॉजिटिव और हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स के रूप में रख सकते हैं। यहाँ पे कोशिश ये करेगा कि आप एक दूसरे को काउंटर करने से ज्यादा कोशिश ये करिए कि अपने पॉइंट्स रखिए, और जब भी आप किसी को काउंटर करें तो प्लीज आप उसको एक रिस्पेक्टफुल मैनर में करें, ताकि किसी की भी फीलिंग या पॉलिटिकल सेंटिमेंट हर्ट ना हो। तो सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक क्वेश्चन प्लीज हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए प्रेजेंट करें, जिससे ये सभी एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। पहले तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत सौभाग्यशाली इस चीज से अपने आप को मान रहा हूँ कि मेरे को एज ए जज बोला गया। हालांकि हम शुद्ध हिंदी में बोले तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी औकात है कि मैं आप लोगों को जज करूं। जितने अच्छे तरीके से आप लोग बोल रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आप लोगों से सीखूं। मैं खुद लिख रहा था यहाँ पे जितने अच्छे पॉइंट्स आप बोल रहे थे। मेरा एक विचार है जिसमें मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग भी थोड़ा सा डिस्कशन करें कि हम एक युवा के अंदर ऐसा कौन सा भाव उत्पन्न करें, ऐसे कौन से भाव एक यूथ के अंदर आए, ऐसी कौन सी फीलिंग्स उनके अंदर आए कि उनको ये बात रियलाइज हो कि हम जब सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं, हम पॉलिटिक्स में आते हैं, उसके पीछे की मंशा सिर्फ और सिर्फ सेवा है। ये फीलिंग किस तरह से है यूथ के अंदर, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं कि उनके अंदर सेवा भाव है? Anybody can start. यहाँ पे आप जितने पॉइंट्स रखेंगे आपको उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे, और आप एक दूसरे से जितने क्वेश्चंस पूछेंगे उतने ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? श्योर। ओके सर, पहले जो आपने पॉइंट रखा मैं उसको सोच के समझ के एक एग्जाम्पल के रूप में आई हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपको सेवा भाव अंदर लाना है तो सबसे पहले तो आपको अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप अपने घर में सेवा भाव लाएंगे, सबसे मिलजुल कर रहेंगे, सबकी बातें सुनेंगे, तो पहली तरफ तो वहां पे आपको ऑनेस्टी का वैल्यू पता चलेगा। दूसरा, अगर आपको ये सब सीखना ही है तो आप एक बार एनजीओ में जाकर काम ना पर उनका काम करने का तरीका देखें, आपके अंदर सेवा भाव आ जाएगा। पैसे के लिए नहीं, कोई पोजीशन पाने के लिए नहीं, वो केवल सोसाइटी की सर्विस देने के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि यूथ को कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से एनजीओ में काम जरूर करना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो वहां से सीखें कि हमें सेवा भाव कैसे लाना है, क्योंकि वही एक सबसे बेसिक तरीका होता है। वहां पे वो पैसे के लिए काम नहीं करते, किसी पोजीशन के लिए काम नहीं करते, कोई आईएएस, कोई पीपीएस, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, सब बराबर होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सेवा भाव लाना है तो सबसे पहले आप अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ एनजीओ जरूर विजिट करें।
मैं अपना पॉइंट यहाँ खत्म करती हूँ। कोई काउंटर करना चाहे तो Sir, may I proceed? Yeah, sure. Aditi, Okay. you can proceed. So, Okay, so आप लोगों से रिक्वेस्ट है Vanya प्लीज will आप लोग be अपना नाम भी बोल दिया करें एक बार। okay. सर Okay, कंटिन्यू Aditi. Okay, so Vanya said ki in order to experience the full benefits of servitude, we should first of all actively volunteer and participate in NGOs, so that we can first-handedly experience and witness the problems faced by the people, and then address them at a more unified and higher authoritative level. But I personally believe that this perpetuates and perpetrates the obsequious nature of politics more than it brings a change in the dynamics of the institution itself. So instead of participating in rallies and taking part in redressal committees, which promise to ensure an even playing ground to ensure justice and equality for all, I think we should actively participate in those events which are more to do with the administration itself. I think youth, especially people from college who are studying in these fields, like one of the contestants said he was studying in political science, I think they are more well versed with this subject as well. So they should actively participate in events which are more to do with the administration portion of a society, so that they can get hands-on experience in that aspect and then transition into politics. And this experience will also prove useful in their later political aspirations. Before anybody I want to say something. counters, before anybody counters, Aditi, I would like to, before आपने anybody बोला counters, कि please. Sir, ma'am. Before anybody counters, may I say something, please? I want to say कि Yes, आप yes. सभी जितने भी आर्ग्यूमेंट्स अपने रख रहे हैं, प्लीज उनको शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सके और जितना रेलेवेंट हो सके उतने रेलेवेंट रखने की कोशिश करिए, क्योंकि लंबे आर्ग्यूमेंट्स रखने से कोई फायदा नहीं है। आपको मार्क्स फिर भी एक छोटे से पॉइंट के लिए भी अच्छे ही मिलेंगे। ट्राई टू कीप इट रेलेवेंट टू द टॉपिक, और जिससे भी आपको क्वेश्चन पूछना है प्लीज उसको जितना शॉर्ट हो सके उतना रखने की कोशिश करिए, और आंसर भी आप उतना शॉर्ट ही दीजिए। देवांश, या श्योर। या माई सेल्फ अखिल पांडे। मेरा सुझाव सर के लिए यही है, सुझाव सर के लिए क्या सबके लिए यही है कि घर से शुरुआत तो करनी ही चाहिए। साथ में जो सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम किसी के अंदर कोई वैल्यू डाल सकते हैं वो है शिक्षा। अगर हम स्कूल में क्लास फर्स्ट से ही बच्चे को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना शुरू करें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ाइए, लेकिन आप शुरू कर सकते हैं कैसे पॉलिटिक्स एज अ सर्विस टू द नेशन। पॉलिटिक्स ऐसा नहीं कि बड़े बड़े नेता रैली और पावर की बात, पॉलिटिक्स एज अ सर्विस टू नेशन। अगर क्लास फर्स्ट से धीरे धीरे बच्चे के अंदर ये बात अगर आप अंकुरित करना शुरू करेंगे तो क्लास 12 तक आते आते वो समझेगा कि कैसे पॉलिटिक्स एज अ मीडियम है हमारे लिए खुद के लिए अच्छा करने का। क्योंकि वो जो बच्चा है जब वो आगे चल के उसके अंदर सब कुछ चीजें सही पढ़ाई जाएंगी, सही तरह से क्लियर रहेंगी, तो जो फोरम पे जाएगा कल को वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो जानेगा कि हाँ प्रॉब्लम्स क्या है, उनको काउंटर कैसे करना है। थैंक यू। Excuse me, bhaiya. Yes. okay. Myself, Babu Shaurya, and from my point of view, if I see, Can I say? Are you speaking? Can I say? Can I say? Yeah, sure. अखिल जी, आपका मैं एक छोटा सा उसको एग्जाम्पल जो था उसको बस इलेबोरेट करना है। आपने बोला शिक्षा देना, वो मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ। प्लस मैंने उसको बोला कि आप जो शिक्षा दे रहे हो उसको प्रैक्टिकल बेसिस पे करो। एनजीओ में और जहाँ अदिति मैम ने बोला कि रैली मैंने रैली की बात नहीं करी थी, मैंने एनजीओ इसलिए कहा था क्योंकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल दोनों एस्पेक्ट से काम होता है और वो एजुकेशन को एक प्रैक्टिकल सेंस देता है। इवन स्कूल्स में भी, मेरे खुद स्कूल में सोशल वर्क क्लब था जिसमें देवांश की मदर जो सेक्रेटरी थी, तो प्रैक्टिकल लेवल पे आपको मिलता है, लेकिन साथ में बचपन से ही वो चीजें अंकुरित होंगी तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा हमारे लिए, हमारी सोसाइटी की। बेसिक शिक्षा बहुत ज्यादा Can I keep? Okay. Can I now? All right, yeah. We will take the point from Satyam now. Satyam. Okay. Satyam followed by Dhruv Krishna. Myself Satyam Rai, and I firmly back up Vanya's point. Like she said that the real exposure of getting the ground reality of the country can be get by serving in any NGOs. I myself have served in an NGO called Robin Hood Army, and मैंने रात में 12-1 बजे तक मैंने वहाँ पे लोगों को, गरीब बच्चों को सर्विस दिया है, वहाँ पे खाना उन लोगों को खिलाना।
शाम को उन लोगों को पढ़ाना। See, we get a perspective when we serve these people because ground reality हमें यही इन्हीं चीजों पर सर्व करके पता चलती है। And as far as अखिल ने एक बात कही थी अपने पॉइंट को रखते हुए कि ईमानदार लोगों को हम लोग खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या मेरा उनसे एक चीज का सवाल है इस चीज पे कि जैसे कि सुब्रमण्यम जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी, आर.के. सिंह, ये लोग बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, अब वो लोग पॉलिटिशियन है, तो आपका उस पर क्या विचार है कि क्या वो लोगों को प्रेरित नहीं कर रहे हैं अपने काम से? They are also setting an example. यस, दे आर सेटिंग एग्जांपल। लेकिन नंबर्स कितने फ्यू हैं ये भी तो आप देखिए। ये तो नंबर्स की भरमार होनी चाहिए, जबकि जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो करप्ट हैं। अगर करप्ट ना होते तो आज ये देश की हालत ना होती। तो नंबर्स फ्यू हैं, नंबर बढ़ना चाहिए, ये मेरा कहना है। जैसे कि हम सबको ऑलमोस्ट यहाँ पता होगा यूपीएससी के सिलेबस में GS4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये हमारा सिलेबस है। हम अगर उस प्रैक्टिकलिटी में लेके आए, जमीनी स्तर पे उसको इम्प्लीमेंट करें, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो वो लोग अपनी ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करें, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे इरेडिकेट कर सकते हैं। ये तो पर्सनल बेसिस पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस स्टीरियोटाइप को तोड़ के पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और एक लार्जर प्लेटफॉर्म से कंट्री के लिए डिसीजन मेकिंग पावर में अपना योगदान दे रहे हैं, हमें लगता है कि ये लोग यहाँ पे भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं देश के लिए। यस यस। हेलो, I would request Dhruv Krishna. Dhruv Krishna has not got a chance yet, so उनको बोलने दीजिए। So I agree with all of most of you, all you people are my respected seniors. So I agree with all of you कि yes practically तो होना चाहिए, but don't you think practically तो ये सारी चीजें होती आई हैं, तब क्यों नहीं honesty आ रही है? I mean before we said, मैम just मैं complete कर लूँ, उसके बाद आप जितना काउंटर करना आप करिएगा मैम। मैं बस ये कहना चाहता हूँ ओके मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एंड में इट इज नॉट दैट कि घर से शुरू करना है, सबसे पहले तो दिमाग से शुरू करना है। देखिए बहुत सारी चीजें होती है ना पॉलिटिक्स में जा करके हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक एस्पेक्ट में ऑनेस्टी आने से कुछ नहीं होगा। इंसान का ऐसा होली पूरा ऑनेस्टी जब तक एक प्राइमरी उसका प्रिंसिपल दिमाग में नहीं बैठेगा ना तब तक वो नहीं होता है। कितने सारे सोशल इश्यूज होते हैं जिससे हम लोग भागते हैं, सेक्स एजुकेशन ले लीजिए, मेंटल डिप्रेशन ले लीजिए, बहुत सारी ये सारी चीजें होती हैं जो इस पे मतलब हम लोग वी रन अवे फ्रॉम देम, हम लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, हम लोग बोलना नहीं चाहते। और एक तरफ पे अगर हम लोग ओपन माइंडेडनेस और वो सब ऑनेस्टी प्रैक्टिस करें, दूसरे साइड पे रिजिड रहें उस बारे में। बचपन से कितना कास्टिज्म होता है, मैं मेरे स्कूल के एक टॉपर का खुद का एक उसके मुंह से कास्टिस्ट कमेंट निकले थे, मतलब काहे के तुम टॉपर हो भाई, मार्क्स ला के तुम टॉपर हो, तुम्हारे अगर ये सारी जो वैल्यूज है। हाँ यस, जैसे कि अखिल सर ने कहा कि पॉलिटिक्स वगैरह बचपन से सारी चीजें सिखानी जरूरी है, बट एक बचपन से एक ये भी अपब्रिंगिंग होती है ना कि एक नॉन बायस्ड किसी, नॉट टुवर्ड्स एनी रिलीजन, नॉट टुवर्ड्स एनी कास्ट, कोई कुछ चीज नहीं है। एक ये एक ओपन, मुझे लगता है एक फ्री अप्रोच ये होनी चाहिए जो सबसे पहले माइंड से शुरू होनी चाहिए। Okay, now Babu Shaurya, please put up your point. Okay. Yeah, so I'm very satisfied with everyone, but I have to keep my point is that politics is not always about doing social welfare. Politics is not always about khana khilao or NGOs. Politicians have many work to do. They don't have this duty कि आज हम लोग रैली निकालेंगे, आज हम लोग ये करेंगे। रूल के कुछ लॉज भी बनाने पड़ते हैं, पॉलिटिशियंस को मिलके कुछ गाइडेंस भी बनाने पड़ते हैं, कोई फ्रेमवर्क भी बनाना पड़ता है। वहां पे उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू ऑनेस्ट होना चाहिए, वहां पे वो अपना सिंसियरिटी, अपनी लॉयल्टी दिखाए देश के प्रति, तो दैट विल बी बेटर फॉर इट। अगर यूथ की बात की जाए तो यूथ शुड नो दैट व्हाट आर द नीड्स ऑफ डूइंग दिस थिंग, हाउ दे विल बी डूइंग इट। जस्ट जनरल वेलफेयर से कुछ नहीं होगा। थैंक यू। Okay, so now I would request पलक आपने हैंड रेज किया था, आप कुछ बोलना चाह रही थी? हाँ भैया, जैसे कि सर ने बोला, दुर्गेश सर ने कहा कि कैसे हम युवाओं में, यूथ में सेवा भाव जगा सकते हैं। तो बेसिक चीज तो ये है कि हमें सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने पेरेंट्स के सामने बोलना पड़ेगा। हम काफी चीजें गलत होते देखते हैं, वो बोल देते हैं कि ठीक है बड़े हैं छोड़ दीजिए, हम बच्चे चुप हो जाते हैं। इंडिया के रैंक 138 है लिटरेसी रेट में और स्मोकिंग में 12th, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जापान में 2 साल तक एग्जाम नहीं होते हैं बच्चों के, यहाँ पे मार्क्स इज एवरीथिंग, मार्क्स है तो सब है वरना कुछ नहीं है। बेसिक एजुकेशन काफी जरूरी है। ह्यूमन राइट इज फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, बट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आरंट एक्सपीरियंसिंग इट इक्वली थ्रू आउट द वर्ल्ड। हमें अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं पता है, हमें ये नहीं पता कि हमारा राइट सेव करने के लिए भी हमारा राइट है, हमें ये तक नहीं नॉलेज है इस बारे में। देवांश
तो टाइम इज अप, आप अखिल अपना लास्ट पॉइंट रख सकते हैं, टाइम बिल्कुल अप हो चुका है। एक्चुअली क्या है ना, सबने जो नहीं ठीक है सबने जो पॉइंट्स रखे हैं उसमें जो पलक का लास्ट पॉइंट था कि हमें नहीं पता हमारे राइट्स क्या हैं, तो एक कब पता चलेगा जब हम बचपन से बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि सबके पॉइंट सही है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ना 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 नहीं, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, मैं बोल सकता हूँ। ये काउंट नहीं हो रहा है, वो बोल सकता हूँ। पॉलिटिकल साइंस तो तब पढ़ेंगे ना जब पेरेंट्स पढ़ाएंगे, तब I would say the time is up. I'm very sorry to say, but time up हो चुका है। मैं बोल सकता हूँ काउंट नहीं होगा। आप लोग डिस्कशन बाद में कर सकते हैं। बता सकते हैं। So we would like to just end this event with the final round. It was really very healthy. So I would request Devansh to just give a closure. Yeah. So before I give the closure, I would request two of our seniors are present over here. I would request first Durgesh sir to please present what he thinks about this topic and ultimately उनका क्या मानना है कि क्या अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं, and then followed by one of our seniors, Mr. Guru Banerjee sir, जो भी अपने बारे में थोड़ा बहुत कंक्लूजन इस टॉपिक के बारे में अपना ओपिनियन देंगे। तो सर दुर्गेश सर प्लीज। विभू आप हो भी, अगर लाइन पे हो तो आप स्टार्ट करिए। विभू are you there? Yeah, I'm here. I'm here, Durgesh ji. Am I audible, Devansh? Yes, sir. Well, if you ask my opinion, it's a fantastic topic to start with. I would like a dishonest politician. Let me drop the truth bomb over there. I want a politician who is effective over honest. We have chosen enough politicians on the guise of having a clean record, and I do believe that my politician is honest, whoever is representing my constituency. But is he effective? If he or she isn't, it is high time to choose a dishonest man, but an effective man who is going to, execute. Like, take example of Trump, for heaven's sake. Trump is a very successful politician, a first-time president. He is known for his tax defrauds that he calls that he was oversmart. He took a flaw in the system and he used it to his advantage. I want a street smart politician who is effective, and I'm not affected by this morality of honesty. I don't care. I want an effective politician at the end of the day. That's what I believe, and well, that's my thought on it. Thank you so much, sir, for your wonderful opinion, and सबसे अलग opinion हमें जानने को मिला कहीं ना कहीं। So now I would request Durgesh sir to please conclude, and sir आप बताइए, क्योंकि जूरी आप हैं हमारे इस इवेंट के। So what do you believe कि क्या नैतिकता पूर्ण लोगों को राजनीति में और ब्यूरोक्रेसी जैसी चीजों में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल देवांश, सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले आपने। मैं रिजल्ट अभी थोड़ी देर में देवांश को भेज दूंगा, वो आपको बता देंगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि ईमानदार लोगों को ही पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मगर इससे पहले पलक बहन ने और भव्या जी ने भी शायद इस बात को मेंशन किया था कि पॉलिटिशियंस हमारे बीच से ही आते हैं। आपकी जिस तरह की मंशा है, अगर आप ये सोचें कि आप गांव के प्रधान के चुनाव में कंबल लेके या कुछ और 100, 200, 500 रुपए लेके किसी इंसान को वोट दे रहे हैं और वो इंसान करप्ट नहीं होगा, तो आप मूर्ख हैं। अगर आप खुद करप्शन के उस चक्कर में पड़ रहे हैं, आप किसी इंसान को सिर्फ अपने लाभ को देख के वोट दे रहे हैं, तो आप कभी भी इस चीज की उम्मीद ना रखें कि वो इंसान अगले 5 साल आपके लिए कोई काम करेगा। अगर आप बड़ी बड़ी रैलियों में बड़े बड़े तोहफों की वजह से, अपने पर्सनल बेनिफिट्स की वजह से कुछ सोच रहे हैं कि हाँ इनको वोट दे देते हमारा कुछ भला हो जाएगा, तो कभी भी उस गांव का, उस देश का, उस जगह का कभी भला नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, हमने एक शिक्षा की भी बात की थी। आप में से काफी लोगों ने बात की कि हमें शिक्षा में ही बचपन से इस चीज को डालना चाहिए, राजनीतिक शास्त्र को लेकर। तो मुझे लगता है कि जब हम बात शिक्षा की करते हैं, शिक्षा हमारे देश में, और मुझे लगता है कि शिक्षा का जन्म ही हमारे देश से हुआ है, भारत से हुआ है, पूरे विश्व को हमने ही पढ़ाया लिखाया। मगर अब जब हम करप्शन की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो शिक्षा से बहुत ज्यादा हमें जिस चीज पे जोर देना चाहिए वो है संस्कार शिक्षा पे हमें जोर देना चाहिए, बच्चों में भी। अगर आपके बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत हो कि आपके घर का बच्चा अपने पिताजी से पूछ सके कि पिताजी आपकी आय 25,000 है, आप माता जी को 50,000 का नेकलेस कैसे दे पा रहे हैं? आपकी आय 25,000 है, हम इतने बड़े बंगलों में कैसे रह रहे हैं? अगर आपके अंदर वो हिम्मत है अपने पिताजी से पूछने की, तभी आप परिवर्तन ला सकते हैं, नहीं तो ये सारी बातें सिर्फ कथा कथित हैं।
तो हम सभी लोगों को अपने घर से ही इन चीज़ों की शुरुआत करनी होगी, छोटी छोटी चीज़ें बदलनी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश का थोड़ा सा हम बदल पाएँ, और ये इस बात से मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम देशभक्ति की भावनाएं बहुत होत हैं, हम देश के लिए बहुत कुछ करेंगे, हम बहुत बड़े समाज सेवक हैं इसलिए करेंगे, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके लिए हैं। आप सोशल वर्क करते हैं, आप में से बहुत से लोग हैं, देवाश जी हैं, विभू जी हमारे साथ, पलक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ एकल में भी जुड़े हुए हैं, बहुत करीब 2-2.5 साल से सोशल वर्क करते हैं। मैं चैलेंज दे सकता हूं कि ये सभी लोग, इन्होंने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया है। आप सबसे ज्यादा अपने लिए करते हो। आप जब स्लम जाते हो, आप गरीब बच्चों से मिलते हो, आपको खुद पता लगता है कि यार ये है लाइफ, यहाँ से मुझे सीखने को मिला। एंड बिलीव मी, ये लोग अगर कल को किसी इंटरव्यू में बैठते हैं, किसी जगह बैठते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। जितने ईमानदार लोग हैं, अगर हमारे आसपास भी कोई इंसान है जो ईमानदार है, आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में देख लीजिए, आप किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप सभी लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस इंसान की तरफ जिसकी स्कॉर्पियो के पीछे बड़ा सा लिखा होता है उसका नाम और ये छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय। आप उस इंसान की तरफ कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे जो साइकिल से आता हो, स्टूडेंट्स की बात करता हो, कभी नहीं होंगे। तो यही हमारी छोटी छोटी कमियां हैं जिस मानसिकता को हमें बदलना होगा। अगर आपसे आज कोई कहे कि एक भैया है चुनाव में खड़े हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, और उन्होंने रेनेसांस में बुलाया है सबको, हमें से काफी लोग जाएंगे, मगर सेम टाइम पे कोई एक साधारण सा बच्चा बोले कि आइए हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के ग्राउंड में बैठे, वहाँ हम बात करें यूनिवर्सिटी को लेके, एजुकेशन सिस्टम को लेके, किसी और चीज़ को लेके, शायद हम सभी को अपनी घड़ी देखेंगे, टाइम देखेंगे, बोलेंगे नहीं हमारे पास टाइम नहीं, पबजी खेलना है। तो हम सभी को अपनी अपनी चीज़ों को सोचना पड़ेगा किस तरह से हम परिवर्तन करें। सबसे पहले भव्या बहन ने या शौर्य जी ने इस बात को बोला था कि हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। जब हमारे दिमाग से परिवर्तन आएगा तो दुनिया अपने आप बदलेगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों की वजह से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी सारे डाटाज मिले, काफ़ी अच्छी बातें सीखने को मिली। थैंक यू देवांश, थैंक यू टीम जज्बात। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे बीच आके आई होप कि आप सभी पार्टिसिपेट। इससे एक बात है, जैसे भैया ने बताया ना कि हम जब देखते हैं ऐसे बच्चों को जाते हुए साइकिल से, हम कुछ नहीं कहते हैं, और जगह छात्र नेता होते हैं तो हम सब भाग के जाते हैं। इससे एक एग्जांपल याद आया, जयललिता जी। मिस जयललिता बहुत ज्यादा रेनोन पॉलिटिशियन है, मतलब थी, सॉरी। उनके ऊपर एक वेब सीरीज बनी क्वीन, बहुत लोगों ने पसंद की, लोग जा जाके देखे, और उनका डार्क साइड शायद किसी को पता भी नहीं है। वो पर्सन के ऊपर 45 करप्शन केसेस फाइल है, 45 करप्शन केसेस फाइल है उन पे, लेकिन उनके रेस्पेक्ट में वेब सीरीज बन रही है, उन पे मूवीज बन रही है, लोग उनका पोस्टर लगा रहे हैं, उन्हें पूज रहे हैं। मैं इसमें और डार्क साइड किसी को पता ही नहीं है। मैं इसमें काउंटर करना before anybody puts up a point over here, we are not into the group discussion now. I am very sorry. And topic पे हमारा group discussion हो गया है। And in reply to that point, I would like to say कि देखिए समाज में कुछ ऐसे मीडियम्स होते हैं जो आपको समाज की तस्वीर को दिखाने का काम करते हैं, बट भगवान की ओर से आपको एक अच्छी खासी बुद्धि दी गई है, 2 आंखें दी गई हैं और एक अच्छी खासी समझ दी गई है, जिसका उपयोग आपको करना चाहिए डिसाइड करने के लिए कि कोई इंसान किस तरीके का है, उसकी एथिकल वैल्यूज क्या है और क्या आप उसको वोट देना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो न्यूज और मीडिया में चीज दिखाई जाती है वो किसी ना किसी तरीके से मॉडिफाइड या डाइल्यूटेड होती है, बट अल्टीमेटली इट इज आवर ओपिनियन जो मायने रखता है। अल्टीमेटली इट इज अस हु हैज टू डिसाइड कि व्हाट इज एथिकल, व्हाट इज मॉरल and what is the best for ourselves and for the society as well. So thank you so much for participating in this mega event. हम लोग इस इवेंट का दूसरा राउंड शुरू करने we are lacking of time, हमें दूसरे राउंड में भी जाना है। I'm very sorry and we are moving to the next. My name is not Bhavya, my name is Vanya. बोथ सर ने गलत ले लिया है। Yeah, all right. So thank you so much everybody for joining us in this session. Sir, thank you. You can continue the session. Sir, can we continue the session? But we have. Or here only. No, we will be starting with this another session. दूसरे राउंड को भी हमें शुरू करना है इसी सेम लिंक पे. So I am very sorry. We will be taking a 5-minute break और आप सब वहाँ पे आ सकते हैं और उस इवेंट को फिर हम लोग सेकंड वाले में आप अपने पॉइंट रख सकते हैं क्योंकि सर को भी जाना है तो हमारे पास थोड़ी कमी है समय की. तो हम लोग अब सेकंड राउंड में मिलते हैं and we will be extending that session. आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो पहले. Sure sir, no Thank you so much. Sure sir. Thank you Durgesh. Thank you so much. Thank you Vibhu sir.